stability of complexes. We know that the complexes is formed between the central metal atom and incoming ligand. We know that here the central metal atom act as a electron pair acceptor. Electron pair acceptor. Why? Because it has vacant d orbital. Why? Because it has vacant d orbital. वहां पे क्या है? Electron. It is the electron pair acceptor. Vacant d orbital is present, so that it is electron poor species. Poor species. It must have to take the electron for the stable. For the stability of metal complexes or metal, it must have to take the electron from the ligand, because it has vacant d orbital. It is electron poor species, so that incoming ligand is the electron rich species. The ligand is electron rich species. We know that it has two pair of electron to donate the electron. It is electron donor. It is electron donor, and it is said to be the electron rich species. Okay, that's why we say that the metal is Lewis acid. Lewis acid, and ligand it is said to be the Lewis base. Okay, why? The metal has, especially the transition metal, because they has vacant d orbital. Because of vacant d orbital, they are accept the electron from the incoming ligand, because ligand is the electron rich species which donate the electron to the vacant d orbital of the metal atom, so that metal takes electron from the ligand, so that it is called as Lewis acid, and ligand donate the electron pair to the central metal atom. That's why it is said to be the Lewis base. It is the general concept. We know that for the formation of coordination complex. Here we discuss the first important term, that is the stability of complexes. How the particular metal complexes are stable. Metal complexes किस प्रकार से स्टेबल होते हैं? क्योंकि मेटल तो लेविस एसिड है, ligand तो लेविस बेस है. अब क्या होता है? अब यहाँ पे कोई भी हमने सॉल्यूशन ले लिया है जहां पे मेटल एटम है in the ionic form. Metal lost the electron. We know that tendency of metal is lost the electron. Metal lost the electron and form ion. Which ion? Cation, positive ion. Okay. By loss of electron, the metal form ion, cation, and when we add the ligand into this solution, which has capacity to donate the electron, what happens? The complexes start to form. How? The rate of forward reaction to the rate of reverse reaction. Rate of forward reaction to the rate of reverse reaction, which is measured in terms of equilibrium constant. Called as stability complex or stability of metal complexes. Stability कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, लाइगैंड ऐड कर रहे हैं, एक लाइगैंड अटैच होगा, उसके बाद दूसरा लाइगैंड अटैच होगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा लाइगैंड अटैच होगा, सो दैट ये क्या होगा, स्टेप वाइज एडिशन ऑफ लाइगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम. पूरे के पूरे लाइगैंड एक टाइम में ही नहीं अटैच होंगे. सेंट्रल मेटल एटम को एक ही टाइम में सभी लाइगैंड अटैच नहीं होंगे. It is addition of stepwise addition. It is the addition of stepwise addition of ligand to the central metal atom. Ligand to the central metal atom. That is the. अब ये यहाँ पे क्या होगा? Rate of forward reaction. Forward यानी क्या? Metal वहाँ पे क्या करेगा? Electron pair accept करेगा from the ligand. Ligand एक ligand add होगा, बाद में दूसरा होगा, बाद में तीसरा. It is the rate of forward reaction. उसी टाइम पे क्या होगा? Rate of reverse reaction भी होगा. अब वो कैसे होगा? मैं जब यहाँ पे एग्जांपल दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपको समझ में होगा. अब यही जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, which is measured in terms of equilibrium constant, that called as stability constant. That is called as
स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे दो टाइप की स्टेबिलिटी आती है, एक तो थर्मोडायनामिक है और एक तो काइनेटिक है। अब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है? विच इज स्टेबल एट specific temperature. At normal temperature, the coordination complex must have to be stable, which is measured in terms of constant, that is called as the stability constant. दूसरा है kinetic stability. That is the particular complex, the transformation of complex is takes place from one form to the another. If we add the second another type of ligand into that complex, एक complex है हमारे पास, समझो CdNH3 कैडमियम NH3/2 है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उसमें हमने दूसरा H2O टाइप का ligand उसमें ऐड कर दिया। अब क्या होगा? The transformation of ligand complex is takes place from one form to the another. अब वहां पे होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? That is the kinetic stability. How the particular complex is stable by kinetically. How the transformation is takes place from one form of complex to the another one. This is said to be the kinetic stability and thermodynamic stability. दो टाइप की स्टेबिलिटी देखी हम, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द अनदर टाइप ऑफ ligand विद द कॉम्प्लेक्स। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा है कि समझो हमारे पास एक मेटल है, ओके, हमारे पास मेटल है, हमने उस वहां पे एक टाइप का जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, उस टाइप का ligand हमने वहां पे ऐड कर दिया, तो क्या होगा? द फर्स्ट ligand इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम व्हिच इज Ml. Ml is formed. Suppose L is the ligand, M is the metal complex, or sorry metal ion. यहाँ पे क्या है? Metal ion, simple metal ion and ligand. Okay. Then in second step, the second ligand is attached to the central metal atom. In third step, the third ligand is attached to the central metal atom. In the fourth step, the fourth ligand is attached to the central metal atom. Okay, यानी कि क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। And this complex formation of each step is called as formation constant. Is called as formation constant. And each step is denoted by K1, K2, K3 or K4. It is said to be the formation constant of each step. हर एक स्टेप की एक फॉर्मेशन कांस्टेंट होगी। यहाँ पे पहले स्टेप पे देखा है कि पहला ligand अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वहां पे K1 एज अ फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? दूसरा ligand अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वहां पे दूसरा टाइप का होगा फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओके, नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ ऑनवर्ड्स। ओके, दिस इज द स्टेप वाइज एडिशन ऑफ ligand टू द सेंट्रल मेटल एटम। ओवरऑल रिएक्शन इज रिटन लाइक दिस वन, n-1 plus L. This is the Kf, that is the formation constant of complex. Okay, then this is the MLN, complex is formed. Then this overall stability constant is measured by K1 into K2 into K3 into K4, and which is given by symbolized by beta. Beta is the stability constant of the particular complex. एक कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, दैट इज फॉर्मेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/kd व्हिच इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन। वहां पे रिएक्शन क्या होगी? रिवर्स भी हो सकती है। वो किस तरह से होती है? अब यहाँ पे देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट इज Kf इज इक्वल टू 1/kd व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईच अदर। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे एक एक ligand वहां पे अटैच होगा, द नंबर ऑफ पोजीशन प्रेजेंट टू अटैच द सेंट्रल मेटल एटम बाय द ligand इज डिक्रीजेस। अब यहाँ पे क्या बोला मैं, देखो यहाँ पे पहले स्टेप में एक ligand अटैच होगा, पहले तो क्या होगा? सपोज ये यहाँ पे टेट्रावैलेंट कॉम्प्लेक्स लिया है व्हिच इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ each ligand by each step, that is tetravalent। चार ligand अटैच हो गए सेंट्रल मेटल एटम। ओके, अब पहले स्टेप में तो यहाँ पे कोई ligand नहीं था, देयर आर 4 पोजीशन प्रेजेंट टू अटैच द ligand, इनकमिंग ligand टू द सेंट्रल मेटल एटम। कितने पोजीशन है? 4 पोजीशन है। ओके,
एक यहाँ से अटैच हो सकता है, एक यहाँ से अटैच हो सकता है, एक यहाँ से, कोई से भी अटैच हो सकता है. देयर आर मोर नंबर ऑफ पोजीशन टू अटैच द इनकमिंग लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम व्हिच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर एटम बिकॉज इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल. अब यहाँ पे पहले स्टेप में बहुत ज्यादा पोजीशन है तो लिगैंड कहीं पे भी अटैच हो सकता है, बराबर है. लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में देयर आर ओनली 3 पोजीशन प्रेजेंट टू अटैच द इनकमिंग लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम. पहले तो 4 थे, अभी कितने, 3 है. तो क्या होगा, पोजीशन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पोजीशन इज डिक्रीजेस. अब लिगैंड अटैच होने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि पोजीशन कम हो गए टू अटैच द इनकमिंग लिगैंड. अब यहाँ पे हमको पता है कि लिगैंड इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, लिगैंड इज द इलेक्ट्रॉन डोनर which has electron, which has pair of electron. Or we know that there is a repulsion is takes place between the electron and electron because they have same charges on each other. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, एक लिगैंड आया समझो, यहाँ पे वो अटैच करने के लिए क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा बिकॉज इट हैज आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट हैज आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा. पहले तो पोजीशन कम हो गई, कितने, एक तो पहला पॉइंट है पोजीशन डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पोजीशन इज डिक्रीजेस टू अटैच द इनकमिंग लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम. दूसरा क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, बराबर है. क्योंकि क्या होगा, इनकमिंग लिगैंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो लिगैंड अटैच हुआ है मेटल के साथ उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो जाएगा, रिपल्शन भी हो जाएगा बिकॉज दे हैव सेम चार्जेस. ओके, दैट इज repulsion is takes place, that is steric hindrance, it is said to be the steric hindrance. इस बात को हम एग्जांपल के साथ देखते हैं. यहाँ पे कैडमियम का हमने मेटल आयन लिया which is carries 2 positive charge. यहाँ पे हमको पता है कि NH3 अमोनिया which is said to be the amine here. Okay, अब amine is the neutral type of ligand, amine is the neutral type of ligand which is attached with the central metal atom in the first step. अब यहाँ पे K1 हो गया, यहाँ पे K1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ. सेकंड स्टेप पे दूसरा NH3 अटैच होगा कैडमियम के साथ, कैडमियम डायअमाइन कैडमियम फॉर्म हो गया, ट्राइअमाइन कैडमियम फॉर्म होगा तीसरे स्टेप में, टेट्राअमाइन कैडमियम फॉर्म होगा चौथे स्टेप में. हर एक की स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है यहाँ पे 10 टू पावर 2.65, 10 टू पावर 2.16. यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए 10 टू पावर 1.44 और यहाँ पे फोर्थ स्टेप के लिए 0.93, 10 टू पावर 0.93. अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू आप देखेंगे तो क्या आपको क्या समझ में आएगा, द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी दैट इज वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन. यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इज डिक्रीजेस, value of formation constant is decreases. Why? Because the number of position to attach the central metal atom is decreases. Also there is a repulsion is takes place between the incoming ligand and the ligand which is attached to the central metal atom, that is the steric hindrance, that is the steric hindrance, so that the formation constant is decreases in each step. Okay, अब पूरा जो हमने बताया कि फॉर्मेशन कांस्टेंट हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वहां पे हमने क्या निकाला, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी कांस्टेंट दैट इज 10 टू पावर 7.12 इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, दैट इज टेट्राअमाइन कैडमियम डाइपॉजिट. एक बात याद रखना है आपको, मेटल के पास डी वैकेंट ऑर्बिटल है, इट इज लेविस एसिड और लिगैंड इज द लेविस गैस. इस स्टेप में क्या हो रहा है कि लिगैंड अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ. आपको ये 3 पॉइंट नोट करना पड़ेगा, पोजीशन डिक्रीज हो रही है, रिपल्शन हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, दैट इज द. अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट फॉर्म हुआ है, हाउ मच दिस कांस्टेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल और काइनेटिकली स्टेबल विद अनदर टाइप ऑफ लिगैंड. यानी कि हमने चलो यहाँ पे अब वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करने के बाद समझो रिप्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे कैडमियम का रिप्लेसमेंट हुआ है वाटर के साथ, दैट इज कैडमियम NH3/3 फॉर्म हो गया समझो. वाटर भी कैसा टाइप का लिगैंड है, इट इज आल्सो न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगैंड. अब यहाँ पे वाटर ऐड हुआ, यानी पे रिप्लेसमेंट हुआ, दैट इज इट इज
काइनेटिकली अनस्टेबल, क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ, क्योंकि क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ है, काइनेटिकली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अगर टेम्परेचर रहा नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो क्या हो गया, उसका डिग्रेडेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स में, तो क्या होगा, विच इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल। दैट इज दिस two constant are most important for the complex system, which is must to have stable at the thermodynamic means or kinetic means. Okay, then there are various factors which affect the stability of complexes. यहाँ पे आप जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं उस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ये हमको देखना है। पहला तो है नेचर ऑफ मेटल आयन, पहला कौन सा है, नेचर ऑफ मेटल आयन विच इज एक्ट एज अ लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन पोर स्पेसिस, वैकेंट d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि पहला जो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, चार्ज ऑफ मेटल एंड साइज ऑफ मेटल। चार्ज ऑफ मेटल यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन और साइज ऑफ मेटल, साइज ऑफ मेटल आयन, आयन फॉर्मूला। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी मेटल पे उतना वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। दैट इज चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ मेटल आयन। जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना स्टेबल होगा, यानी कि क्या, जितना ज्यादा चार्ज उतना वो मेटल कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है which is explain the charge on metal ion, that is hexacyanoferrate। यहाँ पे क्या है, हेक्सासाइनो आयरन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, हेक्सासाइनोफर। अब यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जो आयरन है वहां पे कौन सा चार्ज है, +3 चार्ज है, और यहाँ पे आयरन पे +2 चार्ज है, यानी कि दिस कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हैज मोर चार्ज देन द सेकंड वन। यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। आपको पता है कि यहाँ पे आपको निकालना होगा, तो -6 इज इक्वल टू -4 विच इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू +2 आ गया। ये आप निकाल सकते हैं, वीडियो में बताया, ठीक है। तो यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पे आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखेंगे, यहाँ पे 31.0, यहाँ पे 8.0। यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, सो दैट दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द दिस वन। यहाँ पे 8.3 वैल्यू है, यहाँ पे 31.0, यानी कि जितना चार्ज बढ़ेगा सेंट्रल मेटल एटम पे उतना वो मेटल कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओके, सेकंड वन इज द चार्ज डेंसिटी व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मेटल आयन। अब साइज जितना, अब यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है। अब यहाँ पे वैल्यू दी, एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे B, दैट इज यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हमने, दैट इज द साइज इज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि साइज इज इंक्रीजेस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द साइज इज इंक्रीजेस, दैट इज फ्रॉम बेरियम टू मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टू कैल्शियम एंड कैल्शियम टू बेरियम। साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स पे आप देखो, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज एज द साइज इज इंक्रीजेस, as the size increases stability decreases, यानी जितना कम साइज होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल आप भी ले सकते हैं, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ले लिया। अब क्या हो रहा है, हम पीरियड में जा रहे हैं। यहाँ पे हम कैसे गए थे, ग्रुप में गए थे इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप कैसे जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल इन हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, यहाँ पे हर एक मेटल आयन पे सेम चार्ज है, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको पता है कि as we go from left to right in the periodic table the size is decreases, size is
डिक्रीजेस। अब साइज डिक्रीज होगा तो कॉम्प्लेक्स कौन सा स्टेबल होगा? कॉपर इज मोर स्टेबल, कॉपर फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद पर्टिकुलर लिगैंड। अब NH3 के साथ ही कर दिया, Mn का भी, आयरन का भी, कोबाल्ट, निकल और कॉपर का भी, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कॉपर होगा। यहाँ पे भी हमने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो बेरियम की है, ये कितनी है? 10⁻⁷, which is more stable because size is less as compared to another type of metal। यहाँ पे Mg की दी है 120, यहाँ पे कैल्शियम की दी है 30, यहाँ पे बेरियम की दी है 4, which is very less stable, which is form very less stable complex with this ligand। अब यहाँ पे सेकंड दिया है नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड में दिया है कि जितना साइज लिगैंड का कम होगा उतना वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पे क्या बताया हमने? स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। पोजीशन मेटल आयन को अटैच करने के लिए वो जल्दी से जल्दी अटैच हो सकता है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? लेस रिपल्शन इज टेक प्लेस एज द साइज ऑफ लिगैंड इज डिक्रीजेस। साइज जैसे कम होगी, लिगैंड इजीली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, स्टेरिक का हिंड्रेंस कम होगा, रिपल्शन कम होगा। ओके, दैट इज द साइज ऑफ लिगैंड। देन सेकंड इज द हायर चार्ज। जितना जैसे हमने मेटल में बताया था, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ओके, उतना ही वो स्टेबल होता जाएगा। दैट इज द कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल इन ईच स्टेट। दैट इज द स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीजेस एज द चार्ज एंड size is small for the ligand for the particular complex। Then third one is the Chillet effect। Chillet effect हमने देखा है। There are different types of ligand, monodentate, di, tri, tetradentate ligand। Okay, then another type of ligand is the which form Chillet complex, bidentate type of ligand, which there are two donor atoms are present। There are two donor atoms are present which form ring with the central metal atom। वो क्या फॉर्म करेगा? रिंग फॉर्म करेगा। दैट इज सेड विद द चिलेट इफेक्ट। हमने देखा है, एग्जांपल के साथ भी बताया था। ये EN यानी इथिलीन, CH2 यहाँ पे एक NH2, यहाँ पे एक NH2, दिस इज EN। यहाँ पे एग्जांपल बताया, हेक्सामाइन निकलेट, और यहाँ पे जो दिया है डाइइथिलीन निकलेट। यहाँ पे जो दिया है इसका स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हमने देखा कि 8.6 है, which is monodentate type of ligand, NH3 is the monodentate type of ligand, खाली एक ही ligand है वहां। दूसरा ये देखा है इथिलीन डायमाइन, कौन सा है? इथिलीन डायमाइन। अब यहाँ पे नेमिंग करते वक्त तो हमको 20 लेना पड़ेगा, आपको बताया था 20 इथिलीन डायमाइन निकलेट। ओके, वो नेमिंग के बारे में आप बात नहीं करेंगे, हम खाली स्टेबिलिटी के बारे में। अब यहाँ पे इथिलीन डायमाइन, पहले स्टेप में क्या होगा? इथिलीन डायमाइन अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे अप्रोच कर दिया, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे NH2। समझो एक NH2 अटैच हो, एक नाइट्रोजन एटम अटैच हुआ है सेंट्रल मेटल के साथ विद द इथिलीन डायमाइन। दूसरा जो है, जो वो क्या होगा? ये तो एक ही स्पीशीज का फॉर्मेशन है, बराबर? तो क्या होगा? द सेकंड टाइप ऑफ NH2 is directly attached to the central metal atom, which is tested in the single step। ये रिएक्शन कैसे होगी? सिंगल स्टेप में होगी। अब यहाँ पे NH3 सेंट्रल मेटल एटम को अटैच हुआ, दूसरा NH3 आने के लिए वो सेकंड स्टेप फॉर्मेशन करेगा। हमने ऐसा बोला था, दिस इज K1। यहाँ पे K1 में ही दो लिगैंड अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। दैट इज इन चिलेट इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो लिगैंड अटैच हो रहा है बाइडेंटेड टाइप ऑफ लिगैंड, वो क्या हो रहा है कि सिंगल स्टेप फॉर्मेशन कर रहा है। दैट इज फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर द सिंगल स्टेप, सो दैट this complex is more stable than the this one monodentate type of ligands। क्योंकि क्या हो रहा है कि एक ही स्टेप में फॉर्मेशन कांस्टेंट के एक ही स्टेप में दोनों भी लिगैंड जो एक ही स्पीशीज को अटैच है वो डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, which form ring with this metal atom। और यहाँ पे अगर दो है, यहाँ पे दो लिखा है,
यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 लेते हैं, यहाँ पे 4 अमाइन अटैच है, यहाँ पे खाली 2 इथिलीन डायमाइन अटैच है, यानी कि नंबर ऑफ लाइगेंड भी डिक्रीज हो गए। यहाँ पे 4 लाइगेंड थे, यहाँ पे 4 लाइगेंड थे, सेकंड स्टेप में 2 ही लाइगेंड है, 2 ही लाइगेंड है। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट करेगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ, यानी कि क्या, यहाँ पे 4 लाइगेंड है, यहाँ पे 2 लाइगेंड है, दूसरा सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। This is benefit for the chilate effect, which is more stable form, which is form more stable complexes with the central metal atom. समझ में आया होगा। Number third one is the basic character. We know that basic character, which acts as the Lewis gas, electron donor, which donate the electron to the central. अब जो easily donate करेगा वो क्या होगा, which is the better donor atom, which has more basic character. अब हमको पता है कि NH3 is the more basic than the another type of ligand. यहाँ पे हैलोजन फैमिली के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे NH3 हमको पता है कि it is more basic than chlorine, than bromine and than iodine, because nitrogen donate lone pair of electron easily with the central metal atom than the chlorine, chlorine तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पे ब्रोमीन की साइज ज्यादा है, यहाँ आयोडीन की साइज तो बहुत ज्यादा है, बराबर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इज डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम वेरी इजीली, बिकॉज़ इट हैज मोर बेसिक कैरेक्टर देन द अदर टाइप ऑफ लाइगेंड। ओके, तो जितना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। These are the different types of factors which affect the stability of complexes. Thank you. I hope you understand this concept. In next video, we are going to learn about the basic pairs.